Good morning, students. I am your physical education teacher. Welcome in physical education class. In the last session, I have told you about the meaning and or definition of physical education. Second one, the aim of physical education. Today, we are discussing about the uh, objectives of physical education. Students, there are five types of objectives in our physical education which are helpful to develop the personality of a sports person or a person for all round development. First factor of or first objective is physical development. Second one, mental development. Third one, social, emotional, and last one is spiritual development. Students, these objectives are helpful to groom or improve the personality of a sports person or a athlete or a person. So let's start. First one, physical development. Students, this is the most important objective of the overall development. The main in this the main objective of physical education is physical development. Students, physical education is related to several physical activities. When we do any physical activity, it affects our different body systems. जब स्टूडेंट्स जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उनका हम उसका हमारी बॉडी के जो सारे सिस्टम्स पर हैं उन पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है. देयर आर सो मैनी body systems in our body, that's our blood circulation system, respiratory system, muscular system, skeletal system, digestive system, etc. uh, it means in the development or in the development of size, shape of organ. इसका मतलब क्या है कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो हमारी बॉडी के शेप में और साइज़ में और चेंजेस करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स टू मेक आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ये हमारी बॉडी को क्या है, फिट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है. इफ़ आवर बॉडी सिस्टम्स आर फाइन then and healthy, only then we shall be able to do work our efficiently and be safe from the several diseases. Okay. Second one, mental development. Students, this is the most important factor or objective of the physical development, physical education development, because we are physically fit, but if we are not stable in mental condition, then we can't do any activity with concentration. Students, this objective is related to mental development. There should be uh, some activities of physical education which keep our brain alert and concentrate. इसमें बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिससे क्या है, हमारा ब्रेन क्या है, अलर्ट रहता है और कंसंट्रेटेड रहता है. नाउ अ डेज़ इन फिज़िकल एजुकेशन is not related to physical exercises but only, but it is also includes the rules of the games, principles, structure of body, personal cleanliness, etc. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन में एक्सरसाइज के अलावा क्या है, रोल प्ले कर रहे हैं. These physical activities sharpen the brain. By taking part in physical activities, a person learns to tackle various situations. During sports, many situations occur in which player take his or self decision. तो mental growth
का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में ये फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट होता है कि ऑड सिचुएशन में हमें किस तरह से अपने डिसीज़न लेने हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये इसमें क्या है हमें बताता है। थर्ड वन, सोशल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स दिस ऑब्जेक्टिव of physical education is related to social skill। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जब भी हम कोई भी गेम्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या कोई भी हम जनरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जब तक आप कोऑर्डिनेट प्रॉपरली किसी के साथ नहीं करेंगे तो कोई भी आप एक्टिविटी को फिनिश नहीं कर पाएंगे। फिनिश करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें सोसाइटी में क्या है अपने आप को एडजस्ट करना सिखाता है। तो फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू के हम अपना कोऑर्डिनेशन भी डेवलप करते हैं। टीम इवेंट जितने होते हैं हमारे या इंडिविजुअल जो भी गेम है उसमें भी कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केवल पर्सन टू पर्सन ही नहीं है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी होता है। जब भी कोई हम एक्टिविटी करते हैं टीम इवेंट में तो हम इसको इस तरह से कहते हैं प्लेयर टू प्लेयर कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, रोल प्ले करता है बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन। उसी तरह से भी कोई भी आप एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, स्किल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है कोऑर्डिनेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। इंडिविजुअल गेम में भी, इंडिविजुअल गेम में किस तरह से आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आप इसमें देखते हैं। ड्यूरिंग अ कंपटीशन प्लेयर इज़ अ डिफरेंट रीजन कम्स टुगेदर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। कोऑर्डिनेशन एक आप टीम में कहाँ देखते हैं, जब आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से या अलग अलग सिटी से प्लेयर एक टीम के लिए सेलेक्ट होते हैं। जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में तो वो एक ही रिलीजन के, एक ही कास्ट के, एक ही लैंग्वेज के नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक लैंग्वेज सेम होती है, वो है स्पोर्ट्स की। उसके क्योंकि जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं या गेम चूज़ किया है उसमें स्किल सबकी एक जैसे ही होती हैं, परफॉर्म करने का जो मेथड है वो उनको एक ही है, तो उसके बिहाफ पर क्या है वो कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत इजी हो जाता है। these skills players can make their nation healthy and strong। okay, नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इमोशंस हमारे क्या क्या होते हैं, लव, फेयर, जेलसी, हैप्पीनेस, डिस्पेयर, जॉय, फेयर, लोनलीनेस एंड एट्सेट्रा। These emotions play a very important role to groom a personality of a athlete or a decline a personality of a athlete। क्योंकि अगर आपके इमोशंस पर कंट्रोल है तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं। ड्यूरिंग मैच आप कोई भी ऑड सिचुएशन में जब आपकी टीम को आपकी नीड है वहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो वो क्या है आपकी टीम के लिए बेनिफिशियल होता है। और यही अगर आप इसको सोसाइटी में देखते हैं, अगर आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल है तो आप सोसाइटी में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ दे डू नॉट कंट्रोल, दे मतलब पीपल डू नॉट कंट्रोल दीज इमोशंस, there will be no place for them in the society। ओके, जिनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है वो सोसाइटी में नेगलेक्टेड हो जाते हैं, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। फिज़िकल एजुकेशन helps program develop these emotions to these teach us to control।